Hi guys, welcome back to my channel. In this video, I am going to talk about how I lost fat, how I lost 10 kgs and my overall weight loss journey. So like everybody else, even I have a backstory, but I'm not going to get into the details, otherwise this video will be quite long and I don't think that's important. What I can tell you is that I was trying to lose weight for as long as I can remember, but I couldn't because I was inconsistent. And also other thing, I was quite happy with myself, as in like I didn't think that I needed to lose weight. Yes, हर किसी के जैसे अपने पर्सनल गोल्स होते हैं, मेरे भी थे कि मुझे थोड़ा यहाँ से करना है वहाँ से कम करना है, बट आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट इन माई बॉडी. लाइक आई हैव ऑलवेज बिन दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. But things changed when my weight went up to 64 kgs, and some of you can think कि ये ज़्यादा नहीं है and all, but guys, I think it's quite personal. And for me 64, I was like almost overweight. My height is 5'4", and most important thing is that I was not feeling happy anymore with myself and things were going out of control. And so it was so important for me to control my mind and not vice versa. Like, you don't want your mind to control you. That's when things go haywire. So that was when I started doing a lot of research. And guys, I am a person, if I want to know something, I really get to the bottom of it. And so that's when it all started. And I can totally say that कि मुझे दो चीज़ों ने सबसे ज़्यादा हेल्प करी है. एक consistency and another thing is knowledge. So when I educated myself, I became aware of a lot of things that I was doing wrong and other things that I didn't even know of. So yeah, I can say that my journey has been full of trials and errors, and I'm totally fine with it because I learned a lot. Okay guys, so let's get started. So first thing that I did and helped me so much, that I started walking. And I think that was life changing for me. So I started with 30 minutes first, 45 minutes, 1 hour and then 1 hour 15 minutes. And धीरे धीरे जब मैं comfortable होती गई, मैंने अपना हर दिन का target 10,000 steps कर लिया था. But ये इतनी आसानी से नहीं आया था because 10,000 steps actually 1 hour 40 minutes में कुछ होते हैं, तो वो आज भी मैं पूरे नहीं कर पाती, but I always try my best to hit 10,000 steps. So initially मैंने 5 days in a week ही रखा था कि ये minimum है. आज भी मैं 5 days 6 days, कभी मन नहीं भी कर रहा तो 4 days भी करती हूँ, but yeah, I always try and go out for walks. Why I chose walking? Because weight manage करने के लिए is some kind of cardio and resistance training, which is strength training. ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, तो सबसे अच्छा fat loss होता है, और तब होता ही होता है. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ. अभी लेट्स टॉक अबाउट वॉकिंग. व्हाई आई चोज वॉकिंग? बिकॉज इट्स सो easy peasy lemon squeezy. Yeah, because it's just so simple. Just go out and start walking. And for me it was so easy because I love me time. I don't mind going alone. I love nature. I am a nature's baby, and like I love the healing energy of nature. So I just love to go out for walks. And जो दूसरे कार्डियो थे ना, जैसे कि अगर किसी को वॉक पसंद नहीं है, they can do cycling, dancing, running, swimming, jogging, kickboxing and playing your favorite sport. It can be anything. लेकिन सबसे ज़्यादा important मुझे अपनी जर्नी में ये बात लगी कि you have to enjoy what you're doing. You have to love it. And that's when it starts to show results. So the next thing that I did, जो मैंने अपने रूटीन में फॉलो करनी शुरू करी, was portion control. मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था, but I never used to like the idea of it. Because you know, I used to be so obsessed with my rotis. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को मेरी 2 रोटी चाहिए प्लस सब्जी चाहिए. थोड़ा बहुत सैलड ले लिया तो ले लिया, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों करूँ पोर्शन कंट्रोल. But then of course I learned about it. मैंने इसके बारे में पढ़ा. It is not about just eliminating carbs. It's about adding more nutrition to your plate, which is like protein, a bowl of salad, fermented foods, pickle, and what am I forgetting? Probiotics. तो ये सब चीज़ें भी ऐड करनी बहुत ज़रूरी है. एंड आज तक मैं ऐसे ही खाती हूँ. एंड आई रियली थैंक माई सेल्फ फॉर डूइंग दिस, बिकॉज अब मुझे एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा है, राइट. पहले मुझे ये सब नहीं मिल रहा था, एंड इट्स सो फिलिंग एज वेल. तो भूख लगती ही नहीं है सेकेंड रोटी के लिए. तो मैंने अपने डिनर में, लंच में, पहले जब मैं 2 रोटी खाती थी, उसको मैंने 1.5 किया. एंड सो दैट्स हाउ मैंने पोर्शन कंट्रोल करना शुरू किया. ये मैंने अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में फॉलो किया. जैसे अगर मैं ब्रेड पहले ज़्यादा खाती थी तो मैंने 1 कम कर दी. बट आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, अभी भी जो मेरी रोटी होती है ना, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है. तो वो कहने की 1 रोटी होती है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट 1.5.
बट इट ऑल बॉयल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग कि जो पहले तुम कर रहे हो उससे थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करो. यू डोंट हैव टू मेक मेजर चेंजेस. एंड पोर्शन कंट्रोल करने के बाद मैंने डाइट में ही दूसरा चेंजेस ये करा, बिकॉज वो जैसे कहते हैं ना कि आयुर्वेदा में भी और हर जगह की फ्रेश फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ. तो फ्रेश वेजिटेबल्स मैंने अपने सैलड्स में खाने शुरू कर दिए थे एंड फ्रूट्स मैं अपने स्नैक्स में लेना शुरू कर दिया था, बिकॉज ये मैं पहले नहीं खाती थी. नंबर 3 इन डाइट, ये गाइज मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, बट बिकॉज अब मेरी डाइट यही है तो आई वाज लाइक आई विल टेल यू एज वेल कि मैंने शुगर कम्प्लीटली छोड़ दी थी, वाइट रिफाइंड शुगर. और इसके पीछे भी एक स्टोरी है गाइज. मैं ना अपने बिस्किट्स और रस से बहुत परेशान थी, बिकॉज मैं इतने डुबो के इतने बिस्किट खा जाती थी ना, मतलब उसका कोई हिसाब ही नहीं था. एंड वो मैंने कम्प्लीटली छोड़ दी. एंड ये भी गाइज मैंने आई थिंक धीरे धीरे करके लाइक विद इन 1 मंथ ना मैंने ये छोड़ दिया था. तो उसकी जगह मैं अब नट्स खाती हूँ, मिक्स नट्स. मैंने प्रून्स भी खाए हैं, नट्स भी खाए हैं. तो मेरे फेजेस आते रहते हैं कि अब मुझे क्या चाहिए, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. तो चाय में चीनी से ज़्यादा मुझे बिस्किट्स छोड़ने थे. एंड जो चाय में चीनी थी वो मैंने पहले धीरे धीरे कम की. एंड बिकॉज मैं पहले कैबिन क्रू थी, तो जब हम लेओवर्स पे जाते थे ना तो वहाँ तो चाय मिलती नहीं थी हमें अदरक वाली, तो डिप्टी होती थी. तो डिप्टी में मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ कि उसमें मैंने चीनी नहीं भी होती थी ना तो मुझे ठीक लगता था. अदरक तो है ही नहीं, चीनी भी नहीं है तो चलेगा. तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने चीनी अपनी लाइफ से आउट कर दी कम्प्लीटली. एंड आज तक गाइज मैं फीकी चाय ही पीती हूँ. आई टोटली लव इट. लाइक इन फैक्ट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हैविंग माई टी. बिस्किट्स तो गाइज मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिए. एंड आई एम इन नो वे टेलिंग एनीबडी कि तुम ऐसे छोड़ दो. इट्स जस्ट दैट कि वो मेरे लिए आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, तो मुझे अपने आप को कंट्रोल में लाना था. सो थर्ड थिंग दैट आई डिड, ये जो तला हुआ खाना होता है ना और मैदा होता है, ये सब मैं ये सब अवॉइड करती हूँ. तो जब भी मुझे मन करता था ये सब खाने का, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अभी भी ये सब खाती हूँ, तो जब मेरा मन करता था मैंने स्विगी किया, खाना आया, खाया, इंजॉय किया, ख़त्म, बस. बिकॉज गाइज मैंने ये नोटिस करा है जब घर में ऐसी चीज़ें पड़ी होती है ना और जब भूख लग रही होती है तो सबसे पहले हम यही सब जाके खाते हैं, चाहे चिप्स हो चाहे कोई और भी स्नैक हो. तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इन सब चीज़ों को घर में कम ही रखूँ. ओके, अनदर थिंग, जो मैं पोर्शन कंट्रोल करने लगी थी तो मैंने बीच में स्नैक्स भी डालने शुरू करे. और ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है कि खाने ही खाने हैं, जब भूख लगे तभी खाती हूँ मैं. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो भूख लग ही जाती है. तो आजकल मैं हैंडफुल ऑफ पीनट्स ले लेती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद आ रहा है. पहले मैं स्वीट पोटैटो खाती थी, मखाना खाती थी, फ्रूट्स पे स्नैक कर लिया, स्वीट कॉर्न खा लेती हूँ कभी कभी. ओके गाइज, मूविंग ऑन, नेक्स्ट थिंग दैट आई एडेड इन माई रूटीन वाज वर्कआउट. So as I said before कि fastest and easiest way to lose fat is cardio combined with strength training, resistance training. So जब ये दोनों मिल जाते हैं ना गाइस तो फैट लॉस ज़रूर होता ही होता है. एंड मैंने कार्डियो के लिए अपनी वॉक रखी थी, पोर्शन कंट्रोल में अपना कर ही रही थी. एंड वर्कआउट में मैंने बहुत ही ईजी अगेन बहुत ही ईजी वर्कआउट अपने लिए रखा. ओनली 20 मिनट्स. मैं जिम नहीं जाना चाहती थी, मैंने होम वर्कआउट से शुरू करे. इट इज़ ओनली 20 मिनट्स एंड मैं सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स करती हूँ और मेरे लिए बस वही बहुत है. और मुझे उससे ही बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, बिकॉज मेरे 2-3 फेवरेट कोचेज़ हैं, यूट्यूबर्स हैं. एंड मैंने कुछ कहीं से लिया, कुछ कहीं से लिया एंड अपना एक वर्कआउट रूटीन बनाया. एंड आई ट्रस्ट देम ब्लाइंडली. तो मुझे पता ही था कि ये वर्कआउट हेल्प करेगा. एंड एक्चुअली आई वॉज लविंग इट, राइट. तो मुझे था कि ओके 20 मिनट्स आई एम डन. और उसी में ही आई स्वेट अ लॉट. एक्चुअली इट्स नॉट इवन अबाउट स्वेटिंग अ लॉट, बट आई जस्ट इन्जॉय इट. एंड टिल टुडे आई डू दैट वर्कआउट ओनली. एंड गाइज डेफिनेटली मैं वर्कआउट अपने रूटीन में लाना ही चाहती थी. लाइक आई डोंट इवन सी माई सेल्फ, मतलब व्हाट विल आई डू विदाउट वर्कआउट्स एंड एक्सरसाइजिंग. मतलब वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस और इन सब के लिए तो अच्छी है ही है, लेकिन मेंटल हेल्थ, हेयर, स्किन, स्ट्रेस, ओके, इट शेप्स यू, स्कल्प्ट होती है बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग होते हो, यू गेन मसल. लाइक देर आर endless benefits to add a workout routine in your life. Let's move on to our last point, I guess, which is very funny because I have pissed so many people on this planet Earth क्योंकि मुझे मेरा खाना टाइम पे खाना होता है. तो ब्रेकफास्ट 9 o'clock, लंच 12:30 to 1 मैक्सिमम एंड डिनर मैक्सिमम 8. इफ़ आई एम सेइंग मैक्सिमम 8, मैं 7:30 या 7:45 पर ही खा लेती हूँ. तो अपने घर में तो ठीक है कि अपने घर में आराम से टाइम से खा लिया, लेकिन जब भी मैं किसी से मिलती हूँ ना या कहीं जाती हूँ या ओह माय गॉड, हर कोई मुझे बस यही बोलता है कि एडजस्ट नहीं कर सकती, थोड़ा सा हमारे लिए भी रुक जा, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा. बट गाइज अब मैं चाहूँ भी ना वेट करना, मैं तब भी नहीं कर सकती. एक तो अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं एक चीज़ के लिए डिसिप्लिन हुई हूँ कि खाना टाइम पर खा के सोना है.
और वो मैं करने की कोशिश भी नहीं करती, बस वो अपने आप हो जाता है। लाइक माई बॉडी गेट्स हंग्री एंड इट नीड्स फ्यूल एंड इसको खाना चाहिए, तो मैं चाह कर भी रुक नहीं पाती। तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि भाई भूख लग रही है अब तो मैं तो खा रही हूँ, और कोई खाए ना खाए। सो ये मेरा एटीट्यूड जो है ना, मतलब अब मैं क्या करूँ यार। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि इट हेल्प्स यू सो मच। एनीवे जब कोई भी चीज़ रूटीन में होती है ना गाइज, यू ओनली टेल मी कितना अच्छा होता है रूटीन को फॉलो करना, टाइम से सारी चीज़ें करना। एंड यू नो व्हाट गाइज, कभी ट्राई करना रात को टाइम से खाना, मैक्सिमम 8 बजे खा के ना अगले दिन जब उठोगे ना, यू विल फील सो लाइट। ट्राई इट, इट्स अ ब्लेसिंग। तुम्हें एक हफ्ते में ही फ़र्क आ जाएगा। सो ये काफ़ी पेट को कम रखने में काफ़ी हेल्प करता है। ओके गाइज, सो नेक्स्ट पॉइंट, डू आई इवन हैव टू मेंशन वाटर एंड स्लीप। मतलब पानी 3 to 4 लीटर्स से ज़्यादा ही पीती हूँ मैं, बट 3 to 4 लीटर्स पीना ही चाहिए। एंड गाइज ये मैंने अपने साथ देखा है, मुझे ना कई बार ज़्यादा भूख लगती है, मैंने आई थिंक अबाउट इट ना, देन मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने आज पानी कम पिया है। सो मेनी टाइम्स हमें ऐसे ही बस भूख लग रही होती है, वो भूख नहीं होती, जस्ट कि तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो उसकी जगह पानी पीती हूँ मैं। एंड सो पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग इज स्लीप। आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं 8 आवर्स की स्लीप तो ले ही रही हूँ। मैं तो उससे ज़्यादा भी ईजिली ले सकती हूँ मतलब जब हो पाती है तो ज़रूर लेती हूँ मैं, लेकिन आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मिनिमम 8 आवर्स तो मैं लूँ ही लूँ। मैं इसको ज़्यादा अभी लंबा खींच नहीं रही, लेकिन स्लीप से लाइक इतनी सारी चीज़ें कनेक्टेड है ना, एक्चुअली बहुत सारी। योर फोकस, वॉट यू डू, हाउ यू फील, मूड, एवरीथिंग। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। And another thing that I can say is that guys, I also still make mistakes. What I'm trying to say here is that it's a constant struggle. Okay, not struggle, it's an ongoing journey. Okay, it never stops. You always will have to keep making good choices, better choices for yourself. आपको कॉन्शियसली हमेशा अपने लिए अच्छा चुनना पड़ेगा, राइट। इट डजंट कम वेरी ईजी बिकॉज इतने सालों की हमारी हैबिट्स होती हैं, तो हमेशा ट्राई करते रहना पड़ेगा। एंड आज तक यार, अभी मेरे 10 kgs लूज़ हो गए, आज तक आई स्टिल फाइंड माई सेल्फ गोइंग ऑफ द ट्रैक। एंड सो मुझे उसके बाद अपने आप को ऑन ट्रैक लाना पड़ता है। सो इट्स लाइक यू नो, यू कीप गेनिंग एंड लूजिंग वेट, ये चलता रहता है, 1-2 kg इधर उधर होता रहता है। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग बैक टू योर रूटीन। ओके, फिर सब ठीक है। ऑलराइट गाइज, सो आई थिंक आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। एंड गाइज, मैंने ये इतनी बार वीडियो बनाने की कोशिश कर ली है ना, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ भूल रही थी। तो अभी भी अगर मैं कुछ भूल रही होंगी ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी, प्लीज़ आप देख लेना। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Like and subscribe if you like this video, and I will see you in my next video. Bye.